Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss about the isolation of a phytohormone which is auxin, and I have selected indole acetic acid out of the auxins which plants secrete. As we know that the hormones which plants secrete for produce for their biological functions are called phytohormones. Just like the other organisms, they secrete these hormones and to balance their biological activities. And there are many type of hormones like abscisic acid, indolic acid, and others. But we are going to isolate the auxin today, and let us discuss what the auxins are first. So, auxins, when they were first identified as plant growth hormones, they were identified as growth hormones. Okay, there are many hormones, many type of hormones, and one of these are growth hormones because of its ability to stimulate differential growth in response to light stimuli. When it was discovered as growth hormone, it showed the activity to stimulate the differential growth under the stimulus of light. That is why it was called the growth hormone. The in vitro bioassay in which auxin containing agar blocks stimulated the growth of oat cloptile segments led to the identification of indole 3-acetic acid as the main naturally occurring auxin in plant. The cloptile, first of all, I want to explain this. The cloptile is the covering, or which is you can see in the ग्रोइंग लीफ. ठीक है, जो ग्रोइंग लीफ होता है उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, क्लिप्टाइल जिसको बोलते हैं. दैट क्लिप्टाइल, ठीक है, उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बायो एसे जब परफॉर्म किया गया, ये एक्सपेरिमेंट्स दे वर नॉट इजी, that is about the plant hormones, their secretion, their biosynthesis, and their utilization by the plants. It was not easy, so different experiments were performed, and one of the experiment that what auxin does for its activity, it was performed by placing an agar block. Agar block was prepared, and it was placed on to the top of the shoot. ठीक है, टॉप ऑफ द शूट वैसे तो राउंड होती है, ठीक है, या उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, तो उसको कट करके बहुत स्मॉल सा एक एगर का ब्लॉक विच कंटेन्ड ऑक्सिन जब उसके ऊपर रखा गया तो इट स्टिमुलेटेड द ग्रोथ. ठीक है, तो ओट की जो क्लिप्टाइल सेगमेंट थे उनकी ग्रोथ हुई, और उससे फिर जो है ना लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड. और इंडोल एसिटिक एसिड जो था वो एगर का जो ब्लॉक था उसके अंदर इंड्यूस किया गया था. उससे पता चला कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो नेचुरली जो प्लांट्स में पाया भी जाता है, इट वाज mainly responsible for the growth. Then auxin, it is present in many parts of plant, like in flowers, in roots, and in the petioles. Okay, although in very different concentrations according to the requirement of growth. Okay, the concentration in each position is crucial developmental information. तो वो हमें बताती है जो कंसंट्रेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स में, इट कैन टेल अस, इट कैन गिव अस एन आइडिया अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑक्सिन ग्रोथ अफेक्ट्स. सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आपके पास लेफ्ट साइड पे अरेबिडोप्सिस थैलियाना का एक प्लांट है. अरेबिडोप्सिस थैलियाना को आमतौर पे इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है. एक हेल्दी प्लांट जो है जो ग्रो किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ठीक थी, यानी कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन ठीक थी, ऑक्सीजन सिग्नल ट्रांसडक्शन ठीक थी. दूसरी तरफ है एक म्यूटेंट, ठीक है, जिसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो रही थी ऑक्सीजन के लिए. ठीक है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि
It is with the suppressed growth. ठीक है, without the presence of indolestic acid, the Arabidopsis thaliana mutant strain, it could not grow as the normal plant could grow. दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये तो इसकी डेफिशिएंसी से ये कंडीशन आपने देखी। अगर ये इंडोलेस्टिक एसिड ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा है ये रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स के ऊपर ये आपको बल्कि बल्कि अपीयरेंस नजर आ रही होगी, बल्कि बल्कि स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम कहते हैं ट्यूमर्स, प्लांट ट्यूमर्स इनको बोलते हैं। और ये जो डिजीज होती है इसको हम कहते हैं क्राउन गाल्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं क्राउन गाल्स, जिसका स्पेसिफिक नाम है। क्राउन गाल्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है? ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीट करता है ऑक्सिन्स की ज्यादा अमाउंट। ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन दोनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन करके इसको जब ये रूट सेल्स को देता है, रूट सेल्स चूंकि ये इसके साथ सिम्बियोटिकली रह रहा होता है रूट सेल्स के साथ, तो वहां पर क्या करता है, जब ऑक्सिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है या यहाँ पर एक्सपोज हो जाते हैं रूट सेल्स, तो उसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो कि ट्यूमर की शक्ल में जो है वो नजर आती है। तो नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होती है, अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है, पर्पसलेस परसिस्टेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो जाती है। ठीक है, तो लिहाजा ये इसकी ना ना तो इसकी डेफिशिएंसी अच्छी है और ना ही इसकी ओवर सप्लाई जो है वो अच्छी है प्लांट के लिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन? ऑक्सिन के कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें कंट्रोलिंग सीडलिंग ओरिएंटेशन एंड फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म इसका एक फंक्शन है जो हम थोड़ा सा देखेंगे अभी ऑक्सिन के बारे में। सीड सीड ओरिएंटेशन, उसकी कंट्रोलिंग, और उसके बाद स्टिमुलेटिंग एपिकल ग्रोथ। जो सबसे ऊपर वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम एपिकल, जैसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, वो एपिकल स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी ग्रोथ के लिए एक्सिन की जरूरत होती है। स्टिमुलेटिंग द रूट ब्रांचिंग, रूट ब्रांचिंग को स्टिमुलेट करने में ऑक्सिन का काम है। रूट ब्रांचिंग नहीं होगी तो रूट स्प्रेड नहीं होगी। प्रोमोटिंग फ्रूट डेवलपमेंट, तो ये इसके फंक्शंस हैं जो कि ऑक्सिन की प्रेजेंस में होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन ये फंक्शंस नहीं हो सकेंगे। यहाँ पर हम फोटोट्रोपिज्म को थोड़ा सा देखेंगे, हाउ डज इट वर्क। ये एक्चुअली हम ऑक्सिन के फंक्शंस को देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये एक सीडलिंग नजर आ रहा है, सीडलिंग से ये छोटा सा जो है वो एक जर्मिनेट हुआ है पार्ट, और इसकी ओरिएंटेशन किस तरह से होगी? अब इसकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइट होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ मूव करते हैं। उनका जो है वो इसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म होता है जो है वो अर्थ की तरफ मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म होता है लाइट की तरफ मूवमेंट। तो उसके लिए क्या होता है, जब लाइट का स्टिमुलस आता है तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पर जो इसकी एपिकल पोर्शन होता है जर्मिनेटिंग सीड का, उसमें सबसे पहले आप देखें ऑक्सीजन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं इस पार्ट के अंदर। लेकिन उसमें भी पार्ट जो है वो भी इट इज डिवाइडेड। ठीक है, तो वो पोर्शन जिस तरफ लाइट होगी वहां से ऑक्सीजन मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स दी नो लाइट पोर्शन। ठीक है, तो दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे, डार्कर पोर्शन पे मूव कर जाएंगे, शेडी पोर्शन पे मूव कर जाएंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक पीएच जो है वो बेसिक में चली जाएगी। ठीक है, पीएच का चेंज होगा। उस पीएच के चेंज ने इंड्यूस करना है कि ऑक्सीजन जो है वो शेडी साइड पे मूव कर जाए। ऑक्सीजन पार्टिकल्स यहाँ पर इनकी कंसेंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे जो इस जगह पर मौजूद होते हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे। दे विल गेट इलोंगेटेड। ठीक है, उनकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी। उसका नतीजा ये होगा कि ये वाली साइड चूंकि इलोंगेट हो गई है और ये उतनी ही जितनी पहले थी, उस सूरत में क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है प्लांट का पोर्शन सीडलिंग का ये बेंड हो जाएगा। दैट इज द मूवमेंट वर्ड्स दी लाइट। ये इसको जाहिर है कि लाइट की तरफ मूवमेंट इसलिए होगी कि प्लांट्स जो हैं उसके स्टोमेटा एक्सपोज हो जाएं और
जो है उसके सेल्स, उसके जो क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल्स जो उसके प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, वो लाइट को फोटॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें. So in this way, the stem grows towards the light, and light decrease causes the destruction of oxygens. तो जैसे ही फिर वो कंप्लीट हो जाता है ये काम, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो यहाँ मैं आपके सामने रख रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन्स जो कि प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं. जो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं ऑक्सीजन्स, उनको हम कहते हैं एंडोजीनस ऑक्सीजन्स. एंडोजीनस ऑक्सीजन्स जो हैं वो 4 तरह के हैं, जिसमें कि इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, और इसी की एक टाइप है जो कि क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है. ये इंडोल एसिटिक एसिड ही की टाइप है. फिर है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है. फिर है फिनाइल एसिटिक एसिड, जिसको हम PAA भी बोलते हैं. ब्यूटायरिक एसिड को हम IBA बोलते हैं. क्लोरोएस्टिक एसिड को हम क्लोरो इंडोलेस्टिक एसिड को हम CLIAA बोलते हैं, और इंडोलेस्टिक एसिड का आपको पता ही है IAA. अच्छा, ये तो हो गई एंडोजीनियस ऑक्सीजन्स. कुछ होते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन्स. जो सिंथेटिक होते हैं वो हमारे पास हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम 2,4-D. इसका नाम पूरा नहीं लिखा मैंने, मैं आपको जो मैंने नोट्स देने हैं उनके अंदर मैं इसको चेंज करके आपका नाम पूरा दे देती हूँ इसका, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA भी इसको बोलते हैं. ये सिंथेटिक होते हैं. ये भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आर्टिफिशियली प्लांट कल्चर किए जाते हैं, जिसको हम टिश्यू कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स कहते हैं. उसके लिए भी इन सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो शो करना चाहती हूँ. सबसे हम वॉर्टेक्स मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे. जब हम अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसमें वॉर्टेक्स मिक्सर का इस्तेमाल होगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करता है, ये मिक्सिंग किस तरह से करता है. बिकॉज वी आर नॉट इन द लेबोरेटरी, तो मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही हूँ. तो आइए देखते हैं वॉर्टेक्स मिक्सर किस तरह काम करता है. सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. ये छोटी सी मशीन होती है विच इज पोर्टेबल. आप एक जगह से दूसरी जगह इसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है. इनमें IR सेंसर भी लगा हुआ होता है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने ट्यूब इसके ऊपर रखनी है, इसके 2 मोड होते हैं. एक ऑटो मोड होता है, एक मैनुअल मोड होता है. जैसे ही आप इसे ऑटो मोड पे शिफ्ट करते हैं तो आप अपना सैंपल जैसे ही उसके ऊपर रखेंगे तो इसकी मूवमेंट देखिए आप कि ये किस तरह से नीचे से करंट का प्रोड्यूस होता है, और एक जैसे राउंड सर्कल में इसकी मूवमेंट होती है लिक्विड की, और वो अच्छी तरह आपके जो कंपाउंड होते हैं उनको मिक्स कर देता है. अब ये दूसरा जो इसकी मशीनरी के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी इसके साथ मजीद होते हैं, जो एडिशनल आते हैं मशीन के साथ. आप पूरा सेट जो है उसको भी वॉटेक्स कर सकते हैं. लेकिन हम जो है वो प्रेफर करेंगे कि हम सिंगल जो वो टेस्ट ट्यूब हम सिर्फ उसी को वॉटेक्स करें, ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे मिक्सिंग करने के बाद. जब हम एक्सट्रैक्ट बनाने जाएंगे इंडोल एसिटिक एसिड का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे. आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. जो मशीन होती है ये भी टेबल सेंट्रीफ्यूज होती है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होती है. ये आमतौर पे रेफ्रिजरेटेड नहीं होती, ठीक है. इसके अंदर फ्रिज या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता. तो यहाँ पर ये इसका रोटर होता है. रोटर के अंदर आप जो है वो अपना कंटेनर जो है वो लगा देते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब्स के लिए कैविटीज बनी हुई हैं, ठीक है. इनके अंदर आप ये रोटर हमें डिफरेंट साइज के मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मशीन की जो है
कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं ट्यूब्स, जो आपस में कितनी सारी ट्यूब्स लगाई गई हैं, लेकिन जो आमने सामने ट्यूब्स हैं, जैसे ये दो ट्यूब्स हैं जिनको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, ये दो ट्यूब्स जो हैं ये दोनों आपस में बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसका वेट और इसका वेट इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये वाली जो आमने सामने दो ट्यूब्स हैं इनका वेट आपस में बराबर होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर ये ट्यूब्स जो हैं इनका वेट आपस में इक्वल होना चाहिए। हाँ, बाकियों बाकियों से डिफरेंट हो सकते हैं इन दोनों के वेट, तो आपस में जो है इनका आमने सामने वालियों का बराबर होना चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे। अदरवाइज अगर बैलेंस में रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपर नहीं हो सकती। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे स्पीड, कितनी स्पीड आपने रखनी है, टाइम आप सेट करेंगे कितना टाइम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल हम रख रहे हैं 3000 RPM मेरा ख्याल है रखेंगे, ठीक है। चलिए 2200 RPM रखने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम स्पीड जो इसके लिए हर मशीन की डिफरेंट होती है। हमारे पास जो मशीन होंगी वो 1500 RPM की भी होती हैं और 3000 RPM की भी होती हैं। तो रोटर भी चेंज करके आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो हमारा पर्पस जो है वो है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है ना, तो सेडिमेंट्स जो हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते, वो चूंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से अगर बात करें, वी नीड सुपरनेटेंट ओनली, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम सेंट्रीफ्यूज करके बाकी के मटेरियल्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद वैक्यूम कंसंट्रेटर है, स्पीड वैक्यूम भी इसको बोलते हैं। इसमें पंप लगा हुआ होता है जो कि वैक्यूम क्रिएट करता है। आप अपने ट्यूब्स जो कि आपकी एप एंड ड्रॉप ट्यूब्स होती हैं वो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे, ये इसकी लिड है, ठीक है। बंद करने के बाद आप वैक्यूम को स्टार्ट करेंगे और ये घूमता है, जस्ट लाइक सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये भी मूव करता है, राउंड सर्कल मूवमेंट होती है और हाई स्पीड पे होती है। और साथ साथ वैक्यूम पंप होता है जो क्या करता है, आपके लिक्विड को रिमूव कर देता है और पीछे जो है आपका सॉलिड जो है वो बच जाता है, सॉलिड जो है वो सेडिमेंट हो जाता है। इस तरह वैक्यूम कंसंट्रेटर आपके मटेरियल को कंसंट्रेटेड कर देता है और आप उसे जब आपने यूज करना हो आप उसे डाइल्यूट करके या डिसॉल्व करके यूज कर सकती हैं। इसके बाद हम शेकर का भी इस्तेमाल करेंगे। शेकर हम बिल्कुल स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे जब हमने प्लांट मटेरियल को डिसॉल्व करना है डिफरेंट केमिकल्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये एक जनरल शेकर है, इसकी मूवमेंट जो है वो राउंड राउंड होती है। डिफरेंट तरह के शेकर्स होते हैं, कुछ शेकर जो हैं वो दो साइड्स पे मूव करते हैं, यानी कि इस साइड पर और इस साइड पर, राइट और लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है। उनको हम सर्कुलर नहीं कहते, ऑर्बिटल नहीं कहते। कुछ जो होते हैं वो गोल गोल घुमाते हैं आपकी फ्लास्क को, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल शेकर्स। तो डिफरेंट तरह की एजुटेशन के लिए मौजूद होते हैं, तो हम ऑर्बिटल शेकर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ऑर्बिटल शेकर मौजूद है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं। हमें पता चल गया कि इंडोलेस्टिक एसिड क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, उसकी प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वो नीड टू स्टडी इंडोलेस्टिक एसिड, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि हाँ, इंडोलेस्टिक एसिड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमने देखे। अभी हम प्रेपरेशन करेंगे प्लांट मटेरियल की। जैसे कि मैंने पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसमें क्लोरोफिल एक्सट्रैक्शन था, प्लांट से आपने ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन भी की। तो उसके लिए आप हर प्लांट का जो आपने एक्सट्रैक्ट लेना होता है, डिफरेंट तरह के एक्सट्रैक्ट अभी तक आपने लिए हैं, तो आप डिफरेंट सोर्स लेते हैं, ठीक है। तो आपने सोर्स अपना डिफरेंट ले लिया। अगर आपने प्लांट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करना था तो हमने सीड्स लिए थे, ठीक है। सीड्स में ऑयल जो है वो ज्यादा मौजूद होता है, प्लांट के फैटी एसिड ज्यादा सेव हुए होते हैं। फिर अगर हमने कहा था कि क्लोरोफिल लें तो फिर हमने वो प्लांट से लिया, क्योंकि प्लांट के जो सॉरी लीव्स हैं उधर से लिया था, बिकॉज लीव्स जो होते हैं वहां पर क्लोरोफिल मौजूद होगा। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं हार्मोन। तो हमारे पास जो हार्मोन है जिसको हम स्टडी करेंगे दैट इज इंडोलेस्टिक एसिड, दैट इज एन ऑक्सिन। तो वो कहाँ, हमें पता है कि वो कहाँ मौजूद होता है, वो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में मौजूद होता है। तो जब आप प्लांट लेंगे, आप प्लांट का वो पोर्शन लेंगे जो कि ग्रोइंग पोर्शन होगा, स्टेम का वो पोर्शन लेंगे जो ग्रोइंग पोर्शन होगा, उसको कट करेंगे, कट करके उसको श्रेड करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप उसका 100 मिलीग्राम ले लेंगे। बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्राई वेट भी ले सकते हैं, ड्राई सैंपल भी ले सकते हैं, उसको भी आप 100 मिलीग्राम ही लेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सैंपल कलेक्शन कर लेंगे, जिस कंटेनर में आप लेंगी आप उसे सील कर लेंगी और लैब में ट्रांसफर करेंगी। लैब में ट्रांसफर करने के बाद आपने 100 मिलीग्राम वे कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी, जो आप इधर से ही ले लीजिएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ट्यूब्स जो हैं, जिसमें 100 मिलीग्राम ऑफ प्लांट मटेरियल है, दे विल बी केप्ट एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो आप उसे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख लें, या फिर ओवरनाइट उसे फ्रीज ड्रायर में रखें। फ्रीज ड्रायर जो होता है उसका भी यही काम होता है कि वो ड्राइंग करता है और लिक्विड मटेरियल को जो है वो रिमूव कर देता है। फ्रीज ड्रायर पे -42 के लिए आप रखें ओवरनाइट, तो आपका फिर भी आपका सैंपल जो है वो ड्राई हो जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू कि आपने जो भी अपना प्लांट मटेरियल लेना है उसे अच्छे तरीके से कटिंग वगैरह करने से पहले आप उसे वॉश करेंगी, डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगी। ठीक है जनाब, जब आपने कर लिया, फ्रीज ड्रायर कर लिया या आपने उसे -80 डिग्रीज पे रख लिया, देन यू विल ऐड 1 ml ऑफ इथाइल एसीटेट। आप इथाइल एसीटेट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आइसोप्रोपिनोल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मेथनॉल भी, दिस इज MEOH मेथनॉल। अगर ETOH लिखा हो तो वो एथेनॉल होगा। ठीक है, मेथनॉल या फिर मेथनॉल वाटर। मेथनॉल वाटर किस तरह बनता है कि 8 पार्ट्स ऑफ मेथनॉल एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो हम इसे 1 ml में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आप क्या करेंगी, इनटू ईच ट्यूब कंटेनिंग ड्राई और फ्रेश प्लांट। अब हम इतना ऐड करेंगे कि आपका सैंपल जो है वो उसके अंदर सोक हो जाए। ठीक है, आमतौर पे 100 मिलीग्राम कितना होता है, 1 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या करेंगी, 0.1 ग्राम। आप क्या करेंगी, बहुत थोड़ा सा आपको ये चाहिए होगा, मेरा ख्याल है कि 0.5 या 1 ml विल बी एनफ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगी, शेक द सैंपल्स फॉर 30 मिनट्स इन ऑर्बिटल शेकर। आपने टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है तो आप अपने टेस्ट ट्यूब को रैक में लगाकर सेंट्रीफ्यूज जो हमारा है शेकर है उसके ऊपर 30 मिनट्स के लिए और ऑर्बिटल शेकर पे उसको शेकिंग पे लगाएंगी। ये जो होते हैं ना सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन हो गया, आइसोप्रोपेनॉल या मेथनॉल हो गया, इनके अंदर आपके जो ऑक्सीजन्स हैं वो सोलुबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होने के बाद जब आप शेकिंग पे 30 मिनट्स रखेंगी तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और वो प्लांट मटेरियल से निकल कर बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू गेट रिड ऑफ दी सेल डेब्रिस। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 16,000 ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर 4 डिग्रीज के लिए के ऊपर 5 मिनट्स के लिए। तो हम रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करेंगे या फिर हम अपना रूम टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्रीज मेंटेन करेंगे। देन हम सुपरनेटेंट ले लेंगे, वी विल कलेक्ट द सुपरनेटेंट इनटू अ न्यू 1.5 ml ऑफ माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब उसको कह सकते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं एपेंड ड्रॉप ट्यूब्स। ठीक है, एपेंड ड्रॉप ट्यूब के अंदर आप ले लेंगे जो कि 1.5 ml वाली होगी। देन ड्राई इन स्पीड वैक्यूम। अब ये जो आपके पास आ गया है, नाउ यू नीड टू नो कि आपके पास जो है वो ड्राइड मटेरियल कितना आ गया है। दैट इज द ड्राई मटेरियल कंटेनिंग योर इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन। आफ्टर ड्राइंग we will add 100 microliter of methanol टू ईच सैंपल। क्योंकि हम ट्रिप्लिकेट में ले रहे होंगे, हम ट्रिप्लिकेट में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक ब्लैंक भी लें जिसके अंदर जो है वो आप वो पोर्शन लें जो कि इंडोल एसिटिक एसिड प्रोड्यूसिंग ना हो। ठीक है, वो भी आप ले सकती हैं, या फिर आप उसमें वाटर ले लें सिर्फ। ठीक है, आपका प्लांट सैंपल नहीं होगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आपने मेथनॉल ऐड कर दिया, देन आप इसे वॉर्टेक्स मिक्सर के ऊपर होमोजेनाइज करेंगी। 1 मिनट, 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए आप वॉर्टेक्स पे जब उसे रखेंगी तो वो मिक्स हो जाएंगे जितने भी सॉलिड कंटेंट्स होंगे जो कि ड्राइंग के बाद आपके पास आए हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप उसे होमोजेनाइज कर लेंगी, देन यू विल अगेन सेंट्रीफ्यूज इट। बेसिकली यू आर वॉशिंग, आप मेथनॉल ऐड करके आप उसे वॉशिंग दे रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज अब आप दोबारा कर रहे हैं मिक्सिंग करने के बाद, तो ये वॉशिंग हो रही है आपके इंडोल एसिटिक एसिड की, के जो भी कोई दूसरे कंपोनेंट्स हैं।
ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुपरनेटेंट लेना है, क्योंकि आप मेथनॉल ले रही हैं डिसॉल्व करने के लिए, तो जो इंडोलेस्टिक एसिड होगा वो मेथनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। And then the supernatant, it will be collected and it will be used for analysis. तो यहाँ तक आपने जब कर लिया तो आपके पास सुपरनेटेंट आ जाएगा, जो आपको क्लियर नजर आएगा, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे, या उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड ही होगी और उसका कलर भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो वो आप लेंगी और उसे आप एनालिसिस करेंगी। एनालिसिस के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे। अब आपने करना क्या है, जब आपके पास ये सुपरनेटेंट आ जाएगा, इसे आप माइक्रोपाइपर से नहीं ट्रांसफर करेंगी। इसको ट्रांसफर करने का ये तरीका है, क्योंकि माइक्रोपाइपर जो होती है वो वैक्यूम, पीछे उसकी वैक्यूम क्रिएट हुई हुई होती है, और वो जब सक करती है तो आपके जो सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जिनसे आपने अपने एस्टिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड को वॉश किया है, ठीक है, तो जिनको रिमूव किया है आपने, वो भी फिर माइक्रोपाइपेट में आ जाएंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगी, एक ब्लैंक जो है वो एपेंड्रॉफ ट्यूब लेंगी, और उसके अंदर आप अपना जो मटेरियल है उसे, सुपरनेटेंट जो है उसे ट्रांसफर कर देंगी बाय टिल्टिंग। ठीक है। टिल्ट करके आप उसे ट्रांसफर करेंगी अपनी एपेंड्रॉफ के अंदर, एंड यू विल सेव इट आफ्टर सीलिंग इट। ठीक है। तो सीलिंग फिल्म लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से, ताकि, क्योंकि आपका इंडोलेस्टिक एसिड जो है इट इज डिजॉल्व्ड इन मेथनॉल। तो मेथनॉल अगर उड़ जाएगी तो आपका आपका आप समझेंगे कि शायद मेरी जो है वो ट्यूब जो है वो खाली हो गई है, ठीक है, वेस्ट हो गया मटेरियल, लेकिन ऐसे नहीं है। तो आप ऐसे करेंगी कि उसको अच्छी तरह सील करेंगी। आपने उसको एनालाइज करना है अब, तो उसके लिए आपको जो है वो अच्छे तरीके से सील करने के बाद आप इसे फ्रिज में रखेंगी अनटिल अनलेस जब आप एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करें, यानी कि आप एनालिसिस कर लें। तो इसके एनालिसिस के मेथड्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। ये है प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बुक है, और 2 रिसर्च पेपर्स हैं जिनसे मैंने ये मटेरियल लिया है। वो उन दोनों रिसर्च पेपर्स को आपके नोट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। वो रिसर्च पेपर्स काफ़ी मेहनत के बाद मिले थे, जिसमें ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्योंकि आम तौर पे जो इंडोल एसिटिक एसिड का आपको जितना भी डेटा मिलेगा, वो आपको यही चूँकि टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको प्रिपेयर्ड जो डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉक में मौजूद होता है, आपको उसी की प्राइस वगैरह, उसकी कंपोज़िशन वगैरह मिल मिल रही होगी, क्या आपने वो यूज़ किया और टिश्यू कल्चर किया। तो इसके सर्च पेपर्स जो हैं, ये जो 2 मिले हैं, इसमें से एक जो है उससे लेकर सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रिपेयर किया गया है। इंशाल्लाह जब हम इसे परफ़ॉर्म करेंगे, तो आप लोग